Hi everyone. So most probably, I think every UPSC aspirants has seen this. It is the book which is really important to solve for prelims examination because it gives you the insight regarding prelims, what kind of questions has been asked in civil services, and how you have to prepare a topic, how you have to search the keywords. As in the series of ancient India, I was explaining about ancient India, about Stone Age, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic. So few multiple things which I have covered in class 1 and class 2. So you should also purchase this Ghatna Chakra, or you can just revise through these videos also. If you are not able to afford this book, then I think it will be really helpful for you to focus on 2022 exam, and notification is out for UPSC, and go through the notification very like you can say properly, and then fill the form, because before reading the notification, maybe you may commit multiple mistakes. So that is the first step. You need to read the notification and then fill the form. So who are the newcomers? This is the Ghatna Chakra, and this is Ghatna Chakra. I am going to cover the topic of Stone Age. Few 10 or 15 questions we will do, and then proceed for further also, as I have described about this topic in class 1 and class 2. So let's discuss on this. So in Stone Age, it is a very summarized form which is mentioned in Ghatna Chakra. You can say that is historic period, and if I'm talking about Paleolithic, Mesolithic and Neolithic, lower Paleolithic, middle Paleolithic and upper Paleolithic, and Sohan River Valley, that is in Punjab, Pakistan. So these are many things which I already covered in class 1 and class 2. So this is the first you can say page of Ghatna Chakra. You just go through in detail that what is exactly in the first page, and then we will just move to the question answer section. So this is the second page, and the summary of Stone Age. Go through these details. This is the second page, and there is details about Burzholm and Mahargarh. Apart from this, there is details about Inam Gaon and Chandoli, Nevasa. These terms which I have already described in class 1 and class 2. So you just go through those details. That's very important. That will help you out to understand the topic in detail, and that will help you out to appear in the prelims examination. So this is the second page. Now let's jump. This is the first question. Go through this question, because it has been asked in 2015. That has been asked in UP Lowers Subordinate 2015, and explanation is also there. So Robert Bruce, which is I have emphasizedly mentioned in class 1, Robert Bruce Foote, who discovered first Paleolithic tool in India. So that's what in any of the civil service exam, it is not asked direct questions on the basis of fact, but it is turn around the terminologies. So that's how जो रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं, उन्होंने जो है फर्स्ट पेलियोलिथिक की जो फर्स्ट जो डिस्कवरी की थी, सो दे आर आस्किंग अबाउट कि वो किस ब्रांच से हैं. सो बेसिकली वी कैन से, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज वो आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और वो जियोलॉजिस्ट भी थे. सो दैट्स व्हाट पीपल गेट कंफ्यूज्ड. कुछ लोगों ने उनको आर्कियोलॉजिस्ट ही मेंशन किया और कुछ ने उन्हें जियोलॉजिस्ट मेंशन किया. सो द आंसर इज ए एंड बी बोथ, बिकॉज जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं. सो दैट्स हाउ द आंसर इज जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट बोथ. So let's discuss the second question.
and it is showing that the three age system divided into stone, bronze and iron from the collection of the Copenhagen Museum was coined by. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो कोपनहेगन म्यूजियम में जो कलेक्शन रखा हुआ है स्टोन का, स्टोन वेपन्स का, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एंड दिस इज डिवाइडेड, वो डिवाइड किसने किया है, जो 3 एज सिस्टम है वो डिवाइड किसने किया है. सो दिस इज ऑल्सो आई हैव डिस्क्राइब्ड इन आवर in my class 1. So this is Thomas is the answer for this question. It has been asked in 2010 UPPCS pre. Apart from this, third question. According to the excavated evidence, the domestication of animal began to. So that is very important question because I have also described it in, it is asked in 2006. So that is in Mesolithic era. सुलेमान और किर्थर हिल्स की साइड में भी एनिमल डोमेस्टिकेशन के साइट्स मिले हैं, बट मोर ओवर वो एग्रीकल्चर के लिए है. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मोर ओवर ये आदमगढ़ में मिला था. सो दैट्स मेंशन हियर, दैट इज आदमगढ़, दैट इज इन होशंगाबाद एमपी सबसे पहले. उसके बाद बागौर में मिला है, भिलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है ये. ठीक है. सो दिस इज मीजोलिथिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनिमल को जो पाला जाना शुरू किया वो मीजोलिथिक एरा से स्टार्ट किया है. देन गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4. एंड विच अमंग द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन द मीजोलिथिक पीरियड. सो इसमें भी अगेन the question is asked on animals domestication के साक्ष्य 2018 में पूछा गया है. सो ये एक्सप्लेनेशन सेम है, इसका आंसर भी सेम है. सो ये बागौर में मिला है. सो 2 साइट्स मिली थी एनिमल डोमेस्टिकेशन के लिए. सबसे पहले मिला था आदमगढ़ होशंगाबाद में और बागौर मिला था. सो इसका एक्सप्लेनेशन इजीली बहुत रिलेट करना इजी हो जाता है. सो let's go to question number 5 and question number 6. So watch together both of the questions and try to give the answers. You can note it down in your copies also, or I will suggest you to purchase this book if you are able to do that. So in Mesolithic context, because that is also a very important period, evidence of animal domestication has been found. Again this question has been asked इन स्पेशल प्री 2018 में, एंड अगेन इसका आंसर है आदमगढ़. सो इससे हमें पता चलता है कि जो भी आयोग हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. बहुत हेल्प मिलती है इससे. तो नेक्स्ट टाइम पे जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो इससे बहुत इजीली आपको इंसाइट मिलेगी कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बिकॉज लोग बोलते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते या फिर एंशिएंट हिस्ट्री को इतना फोकस नहीं किया जाता. बट अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो और 6th क्लास की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से की है आपने और उसके बाद उसको स्टैंडर्ड बुक से कंप्लीट किया है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वेरी बेनिफिशियल. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 6. फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट बोन इम्प्लीमेंट्स हैज बीन फाउंड. सो ये बोल रहा है कि जो भी बोन इम्प्लीमेंटेशन जो मिला है वो कहाँ पे मिला है. सो दिस आंसर इज बोथ CNT महादा और सराय नाहर राय में मिले हुए हैं. जो हड्डियों के अवशेष मिले हैं, या आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा मतलब बहुत सारे स्केलेटन को, टूटा फूटा स्केलेटन का जो कह सकते हो हीप या बहुत इकट्ठा हुए हुए मिले एविडेंसेस बोल सकते हो आप इनको, या फिर हड्डियां बोल सकते हो कि बहुत एक जगह पे इकट्ठी हैं, ये बोल सकते हो. सो जस्ट लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. And it has mentioned a large number of implements made of bones and horns have been found from the Mesolithic sites Mahadaha, Sarai Nahar,
दैट इज लोकेटेड इन यूपी, प्रतापगढ़ के पास पड़ता है, जो इलाहाबाद और कानपुर के बीच में पड़ता है ये। सो वहां पे है। द बुक एंटाइटल्ड पुरातत्व विमर्श डॉक्टर जयनारायण ने लिखी है, डॉक्टर जयनारायण पांडे ने उन्होंने डिस्क्राइब किया है। उसके मिले हुए ऑर्नामेंट्स भी कह सकते हो आप, बोन जो बोन से मिले ऑर्नामेंट्स है, कहीं कहीं पे वेपन्स मिले हैं, कहीं कहीं पे बोन्स के टुकड़े वगैरह मिले हैं। सो दीज आर टू इम्पोर्टेंट साइट्स। महादा एंड सराय नाहर दोनों ही प्रतापगढ़ के पास पड़ते हैं। सो दिस इज ऑल्सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो नीड टू रिमेम्बर। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्वेश्चन नंबर 7, bone ornament in the Mesolithic context in India have been obtained from. Again, this is Mahada and Sarai Nahar both, and the explanation is already there in question number 6. Let's focus on question number 7, question number 8. So, the 3 human skeleton in a single grave were recovered from. So this is again, दमदमा is a place that is also प्रतापगढ़ के पास ही है ये, वहां से साक्ष्य मिले हैं इसके। तो ये भी एक पॉइंट रिमेम्बर है कि इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार पीसीएस में, आरओ में पूछे जाते हैं। अगर ये यूपीएससी में होते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूपीएससी में पूछे जाते हैं, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज तो वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी, दोनों के लिए ही आपको इसको कंप्लीट करना, जो घटना चक्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट विल गिव यू इनसाइट कि किस टाइप की लैंग्वेज यूज की जाती है आयोग के द्वारा या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा या फिर स्टेट पीसीएस के द्वारा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So again, let's go on the explanation. Damdama is a Mesolithic site in Pratapgarh, UP, and 41 human graves, जो कि वहां पे दफनाया गया था उनको, तो एक ही जगह पे उसके एविडेंसेस मिले हैं। आउट देयर ग्रेव्स 5 डबल बरियल्स, इसके कह सकते हो आप कि एविडेंसेस हो सकते हैं जहां पे सती प्रथा, जैसे अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वाइफ को भी उसी टाइम पे दफनाया गया हो। सो मे बी प्रोबेबिलिटी हो सकती है इस चीज की। सो कपल ग्रेव्स मिले हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्केलेटन्स भी मिले हैं सराय नाहर से। सो दिस इज एन एविडेंस। इफ अपार्ट फ्रॉम दिस, क्वेश्चन नंबर 9, I'll show you question number 9 and 10 together. So let's focus on question number 9 also. The cultivation of cereals first time started in. So this is cultivation start हुआ है। So जब से agriculture, because starting में herder था, उसके बाद gathering वगैरह start हुई, and उसके बाद से जो है cultivation start हुआ है। So that is Neolithic period में start हुआ था cultivation. So you can just go to the explanation also. Grains were first even produced in Neolithic age. It was the time when people were introduced in agriculture. कोल्डी हवा में जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं, यूपी के पास ही पड़ता है, ये इलाहाबाद के पास, यूपी में पड़ता है, इलाहाबाद के पास। एंड दो प्लेसेस मिले हैं, जैसे कोल्डी हवा यूपी में है एंड मेहरगढ़। सो ये दोनों जो साइट्स हैं, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है और ये जो है यूपी में है। ये दोनों साइट्स इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही न्यूलिथिक साइट्स के एग्जाम्पल्स हैं, न्यूलिथिक विलेजेस के एग्जाम्पल्स हैं, जहां पे मेंशन चावल के साक्ष्य यहां से मिले और एक जगह से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इन क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैव बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो इसका एक्सप्लेनेशन सेम ऊपर मेंशन कर दिया गया है कि आपको न्यूलिथिक एज में जितने भी एविडेंसेस मिले हैं एग्रीकल्चर के, वो किस प्लेस पे मिले हैं, वो भी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पूछा है ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इसमें मेहरगढ़ आएगा, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, आई ऑलरेडी डिस्क्राइब। और इसके पहले जो फर्स्ट एंड सेकंड पेज में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हो। सो दीज आर 10 क्वेश्चंस। In the next video, I will try to cover few more questions on the same topic, and then one by one
as I will cover few subjects, then I will try to solve the questions on Ghatna Chakra. Thank you so much.